Hello class 8, welcome back to your maths online classes. Today we are going to begin a new chapter from your maths book, that is chapter number 9, interest. In this chapter there are two topics basically, simple interest and compound interest. But as you already know that this year ICSE has revised your syllabus, so this year we will only study compound interest. Basically you all in class 7th you already had studied this topic, simple interest and compound interest. So we will see the concept of compound interest, then we will solve some problems based on compound interest. Okay, so what is compound interest? होता क्या है? If I talk in हिंदी, अगर हिंदी बात करें तो compound interest mean चक्रवर्ती ब्याज. Okay, so compound interest mean basically interest over interest. Okay, interest on interest or interest over interest is called compound interest. ठीक है. So in simple interest what happens, if you lend 100 rupees for 1 year at the rate of 10%, so what you do, you multiply your principal, that is 100, by rate of interest, that is 10, and for the time period, that is 1, and you divide all these by 100 and you get your simple amount of simple interest. Okay, and if this time period is of 5 years, so you take that value of t, the value of time, as 5, so you multiply 100 into 10 into 5 upon 100. Okay, so by this way we calculate simple interest. But how compound interest differs from simple interest? So what happens here, suppose if I want to calculate compound interest for 2 years. Okay, I want to calculate compound interest for 2 years on an amount of, or we can say on a principal of 100 rupees, and time period, sorry, this is time, for that time 2 years, and the rate of interest is 10%, and I want to calculate compound interest. Okay, for a time period of 2 years and the principal is 100 rupees, rate of interest is 10%, and what will be the CI? So first what will be the SI? सिंपल इंटरेस्ट क्या होने वाला है इस केस में, 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 100. सो सिंपल इंटरेस्ट इज 20 रुपीज़. सो ऑन 100 रुपीज़ in 2 years I will get 10 rupees in as a simple interest. Now how CI is different from SI? ठीक है, as the definition says or the meaning says, interest over interest. Okay, so यहाँ पर होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 साल के बाद, ठीक है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. ठीक है, 1 साल के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और जो आपका 1 साल के बाद इंटरेस्ट आता है, ठीक है, दिस इज़ नॉट कंपलसरी कि वो टाइम एक साल ही हो. टाइम जितने टाइम में आप निकालना चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट उतने साल में निकाल सकते हैं. इट कैन बी क्वार्टरली, इट कैन बी हाफ ईयरली, और इट कैन बी ईयरली. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट की. सो 1 साल के बाद आपने अपने अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, और जो आपका इंटरेस्ट आया, सपोज़ 100 रुपीज़ पे 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आएगा 10% के रेट से, वो आएगा 10 रुपीज़. ठीक है, 100 इंटू 10 इंटू 1/100, दैट इज़ 10 रुपीज़. अब क्या होगा, ये 10 रुपीज़ हम ऐड कर देते हैं प्रिंसिपल में. ओके, हम किस में ऐड कर देते हैं, प्रिंसिपल में, और ये बन जाता है हमारा अगले साल के लिए प्रिंसिपल. ठीक है, इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट. अब हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमारे 1 साल के इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें मिलेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट. ये जो मेरा 10 रुपीज़ 1 साल के बाद मुझे इंटरेस्ट मिला, ये मैंने अपने प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, और अब मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया होगा, 110 रुपीज़. सो फॉर द सेकेंड ईयर
my principal will be 110 rupees. Okay, so principal is 110 rupees and rate of interest is 10% and time is obviously 1 year, so 0 0 0 and 0. And for the second year I get 11 rupees as interest. सेकेंड ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिला? 11 रुपये. पहले साल कितना मिला था? 10 रुपीज़. अभी 11 रुपीज़ क्यों मिला? बिकॉज ये इंटरेस्ट में अपने प्रिंसिपल में ऐड कर चुका था. सो माय टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? अगर टोटल इंटरेस्ट की बात करूं, सो पहले साल कितना मिला था? 10 रुपीज़. सेकेंड ईयर कितना मिला? 11 रुपीज़. सो मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिला 2 साल में? 21 रुपीज़. और इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना मिला था? ओनली 20 रुपीज़. सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या होता है? जो हमारा रखा हुआ पैसा होता है, जो हमारा जिस पे हम सिंपल इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, वो पैसा और बढ़ जाता है. ठीक है, उस इंटरेस्ट की जो हमें इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, उस इंटरेस्ट के ऊपर भी बैंक हमें इंटरेस्ट लगा के देती है. सो इट इज़ द बेसिकली एडवांटेज और बेनिफिट ऑफ हैविंग कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, आपको समझ आ गया कि कैसे निकालते हैं. ठीक है, वी विल कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, देन वी विल add our interest into the principal, then that amount will become the principal for the second year. ठीक है, अगर थर्ड ईयर होगा तो फिर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो उस प्रिंसिपल में ऐड करके प्रिंसिपल बन जाएगा थर्ड ईयर के लिए. ठीक है, तो इस तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं किसी भी गिवन क्वेश्चन में. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड कि हम कैसे 1 by 1 कंपाउंड इंटरेस्ट को सॉल्व करते हैं. ओके, अब इसके अलावा हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड भी है टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट. अब वो डायरेक्ट मेथड क्या है? इट इज़ सिंपल फार्मूला दैट कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ओके, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट तो आपको पता है, आपको गिवन होगा, सॉरी अमाउंट नहीं, आपको प्रिंसिपल गिवन होगा. और ये अमाउंट कैसे निकलेगा इन द केस ऑफ CI? ठीक है, इन द केस ऑफ SI सिंपल है, आप सिंपल इंटरेस्ट में ऐड कर देते थे प्रिंसिपल तो आपका अमाउंट बन जाता था. बट इन द केस ऑफ CI ये अमाउंट कैसे निकालेंगे हम? सो इस अमाउंट को निकालने के लिए आपके पास जो फार्मूला है दैट इज़ amount equals to, A means amount, principal in the bracket 1 plus R upon 100 power T. Okay, 1 plus R upon 100 whole power T, where A is the amount, P is the principal, R is rate of interest and T is टाइम. ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी हम अमाउंट निकाल सकते हैं और उसके बाद डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं. अभी हम प्रीवियस एग्जांपल की बात करें तो हमारा प्रिंसिपल क्या था? हमने लिया था 100 रुपीज़, टाइम हमने लिया था 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिया था 10%. अगर इसी एग्जांपल की हम बात करें तो अगर इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, सो ए विल बी पी की वैल्यू 100, 1 प्लस आर की वैल्यू दैट इज़ 10 अपॉन 100 एंड टी की वैल्यू 2. ओके, सो 100, 1 प्लस 0 0 कैंसिल आउट, 1 अपॉन 10, एलसीएम लिया 10 प्लस 1 इज 11, 100, 11 अपॉन 10 स्क्वायर, 100 इंटू 11 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 11 इंटू 11 इज़ 121. तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना आया? 121. और उस केस में भी मेरा फाइनल अमाउंट क्या आया था? 121 ही आया था. नाउ अगर मैं CI की बात करूँ, CI क्या हो जाएगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना आया? 121. प्रिंसिपल कितना आया था? 100 रुपीज़. सो 21 रुपीज़ विल बी माई कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी हम डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं.
ठीक है, प्रिंसिपल इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, ठीक है। दिस फार्मूला वर्क्स व्हेन योर इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली। ध्यान रखने वाली बात क्या है, व्हेन योर इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। ये फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब आपका इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा होगा। एनुअली कंपाउंड का मतलब कि आपको साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक बार मिल रहा है, ठीक है। एनुअली मतलब साल में एक बार। अब केस आता है कि अगर मुझे मेरा जो इस कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा होगा, ठीक है। अगर मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होगा तब मेरा फार्मूला क्या बनेगा, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर आप लॉजिक समझ जाएंगे तो एक ही फार्मूले से काम हो जाएगा। व्हेन CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है। जब आपका CI है वो हाफ ईयरली, दैट मीन्स आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, तब आपका फार्मूला क्या हो जाएगा। अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, दैट मीन्स आपका जो टाइम है वो क्या हो गया होगा, आपको साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो पहले तो आपका टाइम क्या था 1 ईयर, क्योंकि आपका कंपाउंडेड था ईयरली। अब जो भी आपको टाइम गिवन होगा, ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई दैट टाइम बाय 1/2, ठीक है। यू विल मल्टीप्लाई योर टाइम बाय 1/2, यू विल मल्टीप्लाई योर टाइम बाय 2, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो साल में 2 बार मिलने वाला है, ठीक है। ईयरली के केस में क्या था, हमें इंटरेस्ट जो है साल में 1 बार मिलता था, और हाफ ईयरली के केस में क्या हो जाएगा, साल में 2 बार इंटरेस्ट, एक बार 6 महीने पे, फिर अगली बार 6 महीने पे, मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 2 टाइम मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं क्वार्टरली मतलब आफ्टर 3 मंथ्स, दैट मीन्स मुझे साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो कितनी बार मिलने वाला है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इन द केस ऑफ हाफ ईयरली योर टाइम विल बी T into 2, एंड इन द केस ऑफ योर क्वार्टरली योर टाइम विल बी T into 4, क्योंकि मुझे साल में 4 बार कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो ये तो हो गई बात, हो गई टाइम की। और बात करते हैं रेट की। रेट का क्या होगा, ठीक है। जब आपका टाइम जो 1 ईयर था तो आपका जो रेट था वो नॉर्मली R%, ठीक है। R/2 था, R/100 था, आपका रेट R% था। अब जब हमारा टाइम जो है वो हाफ ईयरली हो गया है, ठीक है, तो साल में आपको वो 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है, तो क्या करेगा, इंटरेस्ट को वो हाफ कर देगा। सो योर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 1/2। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1/2 कर देगा, हाफ कर देगा। और इन द सेम वे अगर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली अगर वो कंपाउंड करेगा तब क्या हो जाएगा, साल में 4 बार मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो 1/4 कर देगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R/4% हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम फार्मूला बिल्ड कर लेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, सो व्हेन योर CI कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल्स टू, प्रिंसिपल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रिंसिपल एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस R कितना हो चुका था, हाफ, क्योंकि साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा था। सो R/2 मल्टीप्लाई बाय 100, और टाइम क्या था आपका, साल में 2 बार, तो T into 2, सो T into 2, या फिर आप लिख सकते हो 2T। तो ये फार्मूला हो गया आपका जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होगा। 1 प्लस R/2 आपका हाफ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो आधा हो गया, और टाइम आपका डबल हो गया 2 टाइम्स। एंड व्हेन योर CI कंपाउंडेड क्वार्टरली
ठीक है। अगर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपको साल में 4 बार मिलेगा, तब क्या फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, A = P1 + R अपॉन कितना, आपका जो आपका जो रेट था वो 1/4 हो गया, सो R/4 × 100, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका साल में 4 बार, सो T × 4, या फिर आप लिख सकते हो 4T। सो ये आपका फार्मूला हो गया व्हेन योर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड, या फिर इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। यू माइट बी हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट और नॉट, वो हम एक्सरसाइज चल के देखने वाले हैं। बट अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप CI का कोई भी सवाल कभी भी कर ले जाओगे। CI के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में भी आते हैं। इफ़ यू राइट एनी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो वहाँ भी आगे चल के आपको ये चीज़ें काम में आने वाली हैं। सो अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है कि साल में अगर 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ़ हो जाएगा और मेरा टाइम डबल हो जाएगा। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर बनता है कि बताओ अगर साल में मुझे 6 टाइम क्या नाम है इंटरेस्ट मिलता है तो मेरा कितना सिंपल इंटरेस्ट आएगा, तो अगर 6 टाइम मिलेगा तो भाई सही है, टाइम आपका 6 हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा, और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो बस आपको अगर कॉन्सेप्ट याद हो तो आपको कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो ये सारी बात कर ली हमने थ्योरी की कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चंस आपकी बुक में गिवन है। ओके, सो एक्सरसाइज है 9C, ओके, एंड योर क्वेश्चन नंबर 1 इज अ सम ऑफ 8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करें CI के, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। 10% पर एनम, ये तो नहीं है 10% हाफ ईयरली, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन कहता है अ सम ऑफ 8,000, तो सम मतलब प्रिंसिपल गिवन है, सो P विल बी ₹8,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years, सो टाइम विल बी 2 years. Now at the rate of 10%, so R will be 10%, compounded annually, ठीक है, एनुअल है। सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इन फर्स्ट पार्ट इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, पहले साल में उसे कितना इंटरेस्ट मिला, बड़ी आसान सी बात है, निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए, इसके आगे लिख देते हैं इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अमाउंट कितना है 8,000, टाइम पहले साल के लिए पूछ रहा है तो टाइम कितना लेंगे, सिर्फ 1 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% अपॉन 100 क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ परसेंटेज, ठीक है। कभी सोचोगे ये भी कोई फार्मूला, ये कोई फार्मूला नहीं है, इट इज़ गिवन इन परसेंट, इसलिए ये अपॉन 100 आता है, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो 0 कैंसिल आउट, बचा क्या 800। सो फर्स्ट ईयर में जो मुझे इंटरेस्ट मिला आफ्टर फर्स्ट ईयर दैट इज़ 800 रुपीज़, ओके, पहला पार्ट हो गया। सो अब पूछ रहा है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 8,000 प्लस 800, क्योंकि ये इंटरेस्ट, ये मेरा क्वेश्चन किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो ये इंटरेस्ट किस में ऐड हो जाएगा, प्रिंसिपल में। सो 8,000 प्लस 800 एंड इट विल बिकम 8,800। सो प्रिंसिपल हो गया अगले साल के लिए मेरा 8,800। इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, अगेन द सेम थिंग, क्या है 8,800, रेट कितना था 10 था अपॉन 100, ठीक है। परसेंट निकालना है नॉर्मली, अगर टाइम लिखना चाहो 1 तो लिख सकते हो, वरना इसकी भी रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए निकाल रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है। T0000 कैंसिल आउट एंड इट बिकम्स 880, ओके। सो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या आया मेरा 880 रुपीज़, फाइनल अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सो फाइनल अमाउंट
एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, खुद लिख लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा, 8,800 था, इतना इंटरेस्ट और मिल गया मुझे। सो 0 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9। सो फाइनल अमाउंट आया मेरा 9,680 रुपीज़। जो मेरे 8,000 रुपीज़ थे वो 9,680 रुपीज़ बन गए 2 साल के बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। और फाइनल पूछ रहा है CI अर्न इन द 2 ईयर्स। तो बता दो भाई CI कितना आया। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 9680, प्रिंसिपल कितना था 8,000। सो 0861, सो 1,680 रुपीज़ उसने अर्न किया इन दी 2 ईयर्स, just because of compound interest. Okay, now let's move to next question. Question number 2 is dicto as question number 1, एकदम सेम है, पार्ट भी सारे के सारे सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says calculate the amount and the compound interest. Calculate the amount and the compound interest on rupees 12,000 in 2 years at 10% per year. ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें 1 ईयर 2 ईयर थर्ड ईयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा ही नहीं है, हमसे सिर्फ CI अमाउंट पूछा है, तो वो हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो हम फार्मूले लगाएंगे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें इतना सारा। सो प्रिंसिपल है ₹12,000, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। बस CI और अमाउंट पूछा है, बता दो भाई अमाउंट क्या होता है। एनुअली कंपाउंडेड है तो फार्मूला सिंपल हो जाएगा 1 + R/100 पावर T। टाइम बोल लो या कहीं कहीं n भी लिखते हैं तो n भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल इज़ 12,000, 1 + R इज़ 10%/100 एंड टाइम इज़ 2। ओके, अगेन कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 10 × 1 11/10। डायरेक्ट करते हैं 11/10 का स्क्वायर, सो इट विल बी 12,000 121/100। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 0 कॉपी किया, 12 × 12 कैरीज 1, 12 × 2 = 24 + 1 25 कैरी 2, 12 × 1 + 2 इज़ 14। सो आपका फाइनल अमाउंट जो आया आफ्टर 2 ईयर इट बिकम्स 14,520 रुपीज़। CI निकाल दीजिए, CI विल बी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 14,520 माइनस 12,000, दैट इज़ 0 2 5 and 4 - 2 is 2। सो ₹2,520 रुपीज़ उसने अर्न किए कितने टाइम में, 2 ईयर्स में, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10%। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने सीखी आज नई, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के नए नए मेथड, कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। सो do some practice some question at your home, and if you like this video you can also like. Thank you.